Good morning, students. In last session we have discussed about the various range of measurement of length that we are going through in physics. We also have gone through parallax method. We also have gone through the use of parallax method to find out the larger distances in order to estimate the distance of planet and also to measure the size of planet. Now today we will just go through 2 or 3 textbook examples that are given. For example, we are first going through example number 2.1. This very simple example in which we have been asked to convert 1 degree, 1 second and 1 minute, this measure of angles, into the radian. So we already have this conversion that 2 pi radian is equal to 360 degree. So from here 1 degree will be equal to pi by 360, that is pi by 180 radian. So therefore 1 degree we can write down as 3.14 divided by 180 radian. Now this measure 3.14 divided by 180 comes out to be 1.74 into 10 power minus 2 radian. So this was the conversion of 1 degree into radian. Now in second question we have been asked to find out 1 minute into radian. So 1 minute is nothing else but it is equal to 1 by 60 degree, and therefore 1 minute can be written as 1 by 60 into 3.14 divided by 180 radians. Whatever the measure in degree, you will have to multiply with 3.14 by 180 in order to convert it into radian. So this comes out to be 2.9 into 10 to the power minus 4 radian. So 1 minute is nothing else but 2.9 into 10 to the power minus 4 radian. And then finally 1 second. Now 1 second will be 1 by 3600 degree. Therefore 1 second in radian can be written as 1 by 3600 into pi, that is 3.14 divided by 180 radian. And if you measure this value, it comes out to be 4.84 into 10 power minus 6 radian. It comes out to be 4.84 into 10 power minus 6 radian. So you can see we have converted 1 degree, 1 minute and 1 second into radian. In order to convert degrees into radian, you will have to multiply with pi by 180, that is 3.14 divided by 180. In order to convert minute into radian, you have to first convert it into degrees and then you can convert it into radian. And for seconds also you will have to first convert it into degrees and then by multiplying with this term 3.14 by 180 you can convert it into radian. So this was your example number 2.1. Now we move to the next example, that is 2.2. Now this is very simple example in which we can analyze how angles can be used to measure distance. Even this is an example of what? Parallax method itself. It has been given that you are at say point A and you are viewing a tower which is C along a very distant object O, which is at very large distance from A. So this is your probable line of sight. Then you are moving in direction perpendicular to AC and reaching point B such that distance between A and B is equal to 100 meter. And now again you are viewing at C, looking at very distant object O. So your line of sight will be this one, and angle between these two line of sight when you are watching tower C from A,
line joining AC is nothing else but your line of sight. And when you are now at position B, again you are almost watching towards O, but now your line of sight has been shifted. Your line of sight is from B to C. An angle between two line of sight is given to you 40 degree, and question asked to you is that what is the distance between this tower C and point A? You have to find out this distance. Getting the question? What is there? Initially you are at point A and viewing a tower C. Now you have shifted in direction perpendicular to AC by amount 100 meter. You have reached point B and now you are again viewing point C, such that line of sight from A to C and B to C are at angle 40 degree with respect to each other, and this distance AB is given to you 100 meter. Now question asked to us is that what is this distance D? So concentrate on this triangle ABC. Over here you need to find out D. This opposite side 100 is given, adjacent side is need to find out. So we can use this relation tan of 40 degree. Tan of 40 degree क्या आएगा? It will be opposite side, that is AB divided by this adjacent side AC. So we need to find out AC, which is nothing else but AB, which is given to you 100. Tan of 40, tan 40, this angle, the measure of this angle can be easily find out in your, we can say, log table. Will teach you in class how to find out that. It is approximately 0.83. So answer comes out to be 119.5 meter. So distance of tower C from point A is nothing else but 119.5 meter. So this was the question. जहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? पैरेलक्स मेथड का यूज़ किया. क्यों पैरेलक्स मेथड? क्योंकि हमने यहाँ पे दो लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को यूज़ करके we had find out the distance. Now next question we are moving in is question number 2.3. Question number 2.3 में हमें क्या दिया हुआ है? The moon is observed from diametrically opposite points of earth. चलो ये अर्थ है और ये अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट A एंड B. ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं? हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं. इट इज बीन गिवन दैट द एंगल थीटा सबटेंडेड बाय टू लाइन ऑफ साइट इज थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 1 degree 54 minutes. द एंगल बिटवीन, वी कैन से, two line of sight over here theta, it is given to you 1 degree and 54 minutes. Also diameter of earth is given to us. हमें यहाँ पे diameter of earth भी दिया है, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं? बेसिस डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन. वो बेसिस की वैल्यू 1.276 इंटू 10 power 6 मीटर. दिस इज गिवन टू अस दैट बेसिस diameter of earth is 1.276 into 10 power 6 meter, and using this you have to estimate distance between earth and moon. क्वेश्चन समझ लीजिए. पहले क्या दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है कि आप डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट जो है अर्थ के, वहाँ से मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, और दोनों जो हमारी लाइन ऑफ साइट बन रही है वो दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल हमें क्या दिया हुआ है? 1 degree and 54 minutes. और ये जो बेसिस है वो बेसिस की वैल्यू क्या दी हुई है हमें यहाँ पे? 1.276 इंटू 10 power 6 मीटर. यूजिंग दिस व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू एस्टिमेट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. सो हाउ वी कैन एस्टिमेट दिस डिस्टेंस? हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पे कि थीटा एंगल इन रेडियन, उसकी वैल्यू क्या आएगी? आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस. तो ये केस में रेडियस को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? कैपिटल डी. तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी कैपिटल डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा. लेकिन याद रखिए ये चीज़ यहाँ पे आप गलती कर सकते हो. आपको जो थीटा यूज़ करना है वो डिग्रीज में नहीं करना है, थीटा जो है वो रेडियन में यूज़ करना है. तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा यहाँ पे? ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए
थीटा जो कि डिग्री में दिया है उसे रेडियन में कन्वर्ट करें। तो थीटा जो है हमारा 1 डिग्री 54 मिनट, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 डिग्री प्लस 54/60। ये डिग्री को भी मैंने मिनट में कन्वर्ट किया। 1 डिग्री प्लस 54/60 इज 0.9, सो इट इज़ बेसिकली 1.9 डिग्री। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 3.14 बाय 180 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा पहला स्टेप आया जिसमें हमें थीटा रेडियन में मिला। गेटिंग दिस 1 डिग्री 54 मिनट्स, 1 डिग्री एज इट इज, दिस 54 मिनट्स can be divided by 60, then you can convert those minutes into degrees, and now this theta comes out to be 1.9 degree. In order to convert it into radian, we'll have to multiply it with 3.14 by 180. so थीटा की जो वैल्यू मिली वो हमें रेडियन में मिली। अब हमारे पास थीटा है रेडियन में, हमारे पास बी भी है और हमें डी की वैल्यू ढूंढनी है। तो काफ़ी सिंपल है कि यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे हम। डी की वैल्यू क्या है हमारी? बी हमें दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अर्थ बेसिस 1.276 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय थीटा 1.9 इंटू 3.14। ये जो डिवाइड बाय 180 है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इंटू ये हो गया 180। ये वैल्यू अगर हम देखें 1.276 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 1.9 डिवाइडेड बाय 3.14, इट कम्स आउट टू बी 38.49 इंटू 10⁻6, सो इट इज़ 3.849 इंटू 10⁻7 मीटर। दिस कैन बी एस्टिमेटेड एज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आपने देखा होगा कि आपको थीटा दिया हुआ था, बेसिस दिया हुआ था, यूजिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.4 की अगर हम बात करें, we'll move to next question, that is question number 2.4। वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सन्स एंगुलर साइज इज 1920 सेकेंड्स। एंगुलर साइज का मतलब क्या है कि अगर हम अर्थ से ये सन को ऑब्जर्व करते हैं और दूसरे उसके जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स पे अगर हम ऑब्जर्व करते तो लाइन ऑफ साइड के बीच का जो एंगल होगा थीटा, उसे कहा जा सकता है सन का एंगुलर साइज। तो एंगुलर साइज हमें दिया हुआ है, दैट इज 1920 सेकेंड। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इट इज ऑल्सो गिवन टू अस, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 1.496 into 10⁻11 meter. This is nothing else but distance between sun and earth, and now we have to calculate what is the diameter of sun. हमें ढूंढना है कि ये सन जो है, ये डिस्टेंस भी हमें दे दिया है, थीटा भी दिया हुआ है, what is the diameter of sun, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। So how we can calculate? यहाँ पे भी जो है हम सबसे पहला स्टेप तो एक काम करेंगे, ये जो थीटा 1920 सेकेंड्स में दिया हुआ है उसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड टू डिग्री के लिए 1920 डिवाइड बाय 3600, ये डिग्री में हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू डिवाइड बाय 180। ये जो है हमें एंगल जो सेकेंड में था वो रेडियन में मिला। यू आर गेटिंग दिस, 1920 सेकेंड्स में है, उसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 3600, देन मल्टीप्लाइड विथ 3.14 बाय 180, एंड यू हैव कन्वर्टेड इट नाउ इनटू द रेडियन। नेक्स्ट गिवन टू यू इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ,
1.496 into 10 power 11 meter, and now you have to estimate what? You have to estimate the diameter of sun. तो यहाँ पे भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? थीटा. थीटा जो है हमारा वो रेडियन में है, इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क. तो यहाँ पे डायमीटर d डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कैपिटल D. तो यहाँ से डिस्टेंस d की वैल्यू क्या आएगी? थीटा मल्टीप्लाइड बाय d. थीटा की वैल्यू है हमारे पास 1920 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 180 multiplied by d, that is 1.496 into 10 power 11. We have to check it how much answer is coming. So your answer is 1920 multiplied by 3.14 multiplied by 1.496, and then you will have to divide it with 3600, and then you will have to divide it with 180. Okay, so the answer comes out to be 0.0139 into 10 power 11. 0.0139 into 10 power 11. So distance is 1.39 into 10 power 9 meter. This is the diameter of sun, that is coming out 1.39 into 10 power 9 meter. देख रहे हो आप, काफ़ी सिंपल है ये. यूजिंग दिस एंगुलर साइज एंड डिस्टेंस यू कैन एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. डायमीटर का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? इट इज एंगुलर साइज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. यूजिंग दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ. अब हम जो बात कर रहे हैं आगे वो है मेजरमेंट ऑफ मास, एंड देन we'll move to measurement of time. So अब next topic जो है हमारा वो है measurement of mass. So now see over here, the range of mass that we have to measure. Range of मतलब we'll have to find out the lowest mass what we come across in physics and the highest mass that we come across in the physics. So lowest mass that is we are coming across is mass of electron, जो कि है 9.1 into 10 power minus 31 kg. See, this is a mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 kg. It is very small mass. Then you go on increasing on a larger scale. Mass of Earth coming about 6 into 10 power 24 kg, and then mass of our observable universe, that is the highest mass order that we are going through, it is almost of the order of 10 power 55 kg. So we can see that there is a large range of mass that we are coming across. Okay, the mass of electron is having 9.1 into 10 power minus 31 kg. Its order is almost, we can say 10 power minus 30 kg, and mass of observable universe, mass of observable universe is around 10 power 55 kg. So large range of mass that we are going to deal with. In order to measure a smaller mass, small यूनिट ऑफ मास, अगर आपको काफ़ी स्मॉल मास जो है, काफ़ी छोटा मास है, अगर उसे मेजर करना है तो उसके लिए हम ऑफकोर्स केजी जैसे यूनिट को नहीं यूज़ करेंगे. एटॉमिक मास या न्यूक्लियर मास के लिए, या सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके मास के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं उसे AMU कहा जाता है. AMU को हम क्या कहेंगे? इट इज़ एटॉमिक मास unit, and in some book even it is written as only U. Only U का मतलब क्या होता है? It is unified atomic mass. It is one and the same thing. AMU and U. AMU you have to read it as atomic mass unit, or only U if I write down, you will have to read it as what? Unified atomic mass. They both are same only. So 1 U basically
is 1/12 of mass of carbon 12 atom in its ग्राउंड स्टेट। ये उसकी डेफिनेशन है कि भाई 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास मतलब कितना मास होता है, इट इज 1/12 ऑफ 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब कार्बन 12 एटम का मतलब क्या है, ये 6 क्या दिखा था उसका एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट कार्बन विल बी 6। 12 इज नथिंग एल्स बट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन 6 है और टोटल नंबर 12 है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, 12 - 6 दैट इज 6 ओनली। और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसे हमने ग्राउंड स्टेट में लिया है, अभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, तो देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन एज वेल। तो 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन, ये तीनों का मिलके मास जो है वो है मास ऑफ कार्बन 12 एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड डिवाइडेड बाय 12। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg। ये हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट मिल रहा है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? मेजरमेंट ऑफ मास, वी आर वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम से 10 पावर -31 kg टू ऑलमोस्ट 10 पावर 55 kg। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास इज एटॉमिक मास यूनिट एंड इट इज ऑल्सो 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg। उसकी डेफिनेशन भी याद रख लेना है आपको, केमिस्ट्री में भी यूजफुल है। यूनिफाइड एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में बोल रहा हूँ मतलब उसके पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट है अभी, मतलब ये जो एटम की मैं बात कर रहा हूँ अलॉन्ग विथ ऑल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, टोटल एटॉमिक मास की बात हो रही है, उसका 12th पार्ट दैट इज ऑलमोस्ट 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg। ये तो बात हो गई। चलो अब मेजरमेंट ऑफ मास की, अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम की। छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक है, उसमें ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल टॉपिक है, वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, हमें पता है कि जब हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, देन वी टॉक अबाउट बिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके, एंड ऑन द सेम टाइम वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल टाइम। अगर आपने सेकेंड की डेफिनेशन देखी होगी तो सीजियम 133 एटम का जो 2 हाइपरफाइन लेवल्स है उसके बीच में वो कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, कितने ट्रांजिशन कंप्लीट करता है, ऑलमोस्ट 9 बिलियन, ऑलमोस्ट 9 बिलियन। सो वहाँ से हमें पता चलता है कि वी हैव टू मेजर अ स्मॉलर टाइम एंड इवन अ लार्जर टाइम, एंड दैट्स वाई फॉर मेजरिंग दोज टाइम इंटरवल्स ऑल्सो वी नीड डिफरेंट टेक्निक्स। एंड सबसे प्रिसाइज जो क्लॉक हमने इन्वेंट की, सबसे पहली क्लॉक किसने इन्वेंट की थी, गैलीलियो ने, जिसमें इस तरीके के कप शेप में ये जो सैंड यूज़ करते थे, ये पहले हमारी एंशिएंट क्लॉक थी। गैलीलियो ने क्या यूज़ किया था, गैलीलियो जो है उन्होंने पेंडुलम यूज़ करके जो है वो क्लॉक बनाई थी, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट सर्टन प्लेस। सो बाय मेजरिंग नंबर ऑफ we can say oscillation, you can estimate the time interval, and now we have more precise clock which are called as atomic clocks. We already discussed earlier also that atomic clocks are very precise clock, and over the span of 100 years or even 1000 years they lose only a few seconds, so they give you accurate time always. तो ये सी बात हमारी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम की। अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। देखिए समटाइम बोथ दिस वर्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन दे अपीयर्स ऑलमोस्ट सिनोनिम्स टू ईच अदर। जो एक्यूरेसी है वही प्रिसीजन है, हम हमेशा ये सोचते हैं, लेकिन दोनों वर्ड में काफ़ी डिफरेंस है। देखते हैं कि वो डिफरेंस हमें कैसे मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, सपोज राइट नाउ टाइम इज 9 AM 51 minute and say 54 seconds, as I am writing down this is the time, 9 hours
54 मिनट्स 54 सेकेंड, ये जो है हम बोल सकते हैं कि करंट टाइम दैट इज़ राइट नाउ। और ये दोनों टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास दो क्लॉक है, एक है क्लॉक ए और दूसरी है हमारे पास क्लॉक बी। क्लॉक ए जो है वो आर मिनट सेकंड मेजर कर सकती है, जबकि क्लॉक बी सिर्फ आर और मिनट ही मेजर कर सकती है। आप देख सकते हो दोनों क्लॉक में डिफरेंस है। क्लॉक ए में आपको सेकंड्स भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि क्लॉक बी में सेकंड्स नहीं है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लीस्ट मेजरिंग कैपेसिटी, सबसे छोटे में छोटा जो मेजर कर सकेगा वो क्लॉक ए है, जबकि क्लॉक बी जो है वो सबसे छोटे में छोटा मेजर नहीं कर पाएगा। आ रहा है समझ में? तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लॉक ए इज मोर प्रिसाइज देन क्लॉक बी। सिर्फ उनकी मेजरिंग कैपेसिटी चेक करके, सिर्फ उनकी मेजरिंग कैपेसिटी चेक करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विच क्लॉक इज मोर प्रिसाइज। यहाँ पे वी कैन इजीली से दैट क्लॉक ए इज मोर प्रिसाइज देन क्लॉक बी। व्हाई आई कैन से दैट? बिकॉज द लीस्ट मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ क्लॉक ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ क्लॉक बी। मतलब एक चीज़ आपको पता चल रहा है कि प्रिसीजन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रिसीजन जो है वो डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आ रहा है समझ में? प्रिसीजन जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट यू कैन मेजर। ओवर हियर इन क्लॉक ए यू कैन मेजर अप टू seconds, so that's why clock A is more precise than clock B। तो प्रिसीजन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपका ज़्यादा प्रिसाइज माना जाएगा? जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा, जो और छोटा मेजर कर पाएगा वो आपका प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दोनों क्लॉक ने टाइम क्या मेजर किया है। मान लो ये क्लॉक जो है हमारी क्लॉक बी, उसने मेजर किया है 09:52 और क्लॉक ए ने मेजर किया है 09:20:12। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्लॉक ए जो है हमारी, उसका लीस्ट मेजरिंग पावर तो काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर करंट टाइम की बात करें और रीडिंग की बात करें तो एक्चुअल टाइम से ज़्यादा नज़दीक कौन दिखा रहा है? क्लॉक बी दिखा रहा है, जबकि क्लॉक ए का जो रीडिंग है वो एक्चुअल टाइम से काफ़ी दूर है। तो एक्यूरेसी की बात की जाएगी तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लॉक बी इज मोर एक्यूरेट देन क्लॉक ए। आ रहा है समझ में? प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसीजन का मतलब है लीस्ट मेजरिंग कैपेसिटी। अभी भी क्लॉक ए जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट कौन है? क्लॉक बी ज़्यादा एक्यूरेट है। मतलब अगर बात की जाए एक्यूरेसी की तो व्हाट वी मीन बाय एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज नथिंग एल्स बट इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मतलब अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू से काफ़ी नज़दीक है, इफ़ योर मेजर्ड वैल्यू is very close to actual value, then we can say that reading is more accurate. Over here this reading is less accurate but of course more precise। आ रही बात समझ में? प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, whereas accuracy it depends on difference between actual value and measured value। तो इन दोनों में से ज़्यादा प्रिसाइज है क्लॉक ए और इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट है क्लॉक बी। अगर हम लीस्ट काउंट को ध्यान में लें तो वहाँ से हमें प्रिसीजन का पता चलेगा, और अगर हमारे एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का डिफरेंस कम है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग कहा जाएगा। हमें फिजिक्स में दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। वी रिक्वायर अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स अस अ एक्यूरेट रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट अ very fine results
very nice measurements, what we require? We require instruments which are very precise, which can measure up to very small values, and they should give us the accurate value. अकेला precision या अकेला accuracy हमारे काम का नहीं है. ओके